Good morning. So now welcome back to our work. It's a Vedic period. We were talking about the Vedic period. Hope we have done till the Rig Vedic period, social, economic and political factor. Yes, so social, economic and political factor. So Rig Vedic period. (1500 BC to 1000 BC). Rig Veda. This is the period of the Rig Veda. Period of the Rig Veda. 1500 BC to 1000 BC. This is the period of the Rig Veda. What is there in this period? Look at. We have seen the patriarchal family, travel family, simple economy, right? So everything related to the social, economic and political life of the Rig Vedic period we have done. Political life of the Rig Vedic period we have done. Then come to the later Vedic period. (1000 BC to 600 BC). Later Vedic period 1000 BC to 600 BC. (600 BC). So what changes we observe here in the society? मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन प्रीलिम्स मेंस में भी आया है कि कंपेयर द ऋग वैदिक पीरियड विद द लेटर वैदिक पीरियड। तो यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा देखना आपके लिए, ऑब्जर्व करना सोसाइटी क्या है लेटर वैदिक पीरियड का। तो लेटर वैदिक पीरियड सोसाइटी रिमेन्ड पैट्रियार्कल, means rights and obligation transferred from father to son. Rights and obligation transferred from father to son. Father to son. Rights and obligation transferred from father to son. This is patriarchal society. Rights and obligation transferred from father to son. So in Rig Veda also society remained the same, here also society remained the same. So society remained patriarchal. But Varna system became rigid. Varna system had become rigid. So Varna system became rigid means Varna determined by birth. Varna determined by birth. There was Varna determined by
karma. Here, born determined by birth. So, determined by birth. So, Brahmana occupied the highest position. Brahman, highest. Followed by Kshatriya. Followed by Vaishya. And followed by Shudra. Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra. So Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra, the Varna system had become rigid. Means inter-Varna mobility was restricted. Inter-Varna mobility was restricted. If you born Brahmanas, you will die Brahmanas. So inter-Varna mobility was restricted. Varna system became rigid, so inter-Varna mobility was restricted. Inter-Varna mobility was restricted. सारे बच्चे लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं लिखवाने का। साथ में समझते हुए लिखना है, समझते हुए लिखना है। हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए ना। आप तो स्मार्ट आईएएस बनने की तैयारी में हैं आप लोग, तो उस हिसाब से देख रहे हैं देश आपका कैसे विकास करेगा जब तक आप अपने लेवल पर बेहतरीन प्रदर्शन नहीं करेंगे। So inter-Varna mobility was restricted. So Varna system had become rigid. Condition of women. Condition of women. Condition of women downgraded. Downgraded. Condition of women downgraded. Became very less. Women lost the property right. Lost the property right. There was beginning of polygamy, child marriage. The condition of women downgraded, lost the property right, polygamy, child marriage.
right? So condition of women had deteriorated. Interurban mobility. Was restricted. There was growing rituals. Dan and Dakshina became very important part of the life. Dakshina. Became important. Dan and Dakshina became important. Important part of the life. So growing rituals. There were 16 sanskar started in this phase. 16 sanskar. 16 संस्कार. मतलब गर्भधारण से लेकर के बच्चा पैदा हुआ और उसके बाद वो एडल्ट हुआ और उसके बाद वो मरेगा, तब तक 16 संस्कार पूरे जीवन में. एंड देयर आफ्टर लॉट्स ऑफ दान एंड दक्षिणा. जैसे 16 संस्कार में गौतम सूत्र में, गृह सूत्र में लिखा हुआ है, गर्भाधन पुंसवम सीमंतोनयन जात कर्म नाम कर्म निष्कर्म अन्नप्राशन चौल कर्ण वेद उपनयन विद्यारंभ वेदारंभ केशांत सांबर्तन विवाह अंत्येष्टि. 16 संस्कार है गौतम सूत्र और गृह सूत्र में, गर्भाधन से लेकर के अंत्येष्टि तक. गर्भाधन पुंसवम सीमंतोनयन जात कर्म नाम कर्म निष्कर्म अन्नप्राशन चौल कर्ण वेदा उपनयन विद्यारंभ वेदारंभ केशांत सांबर्तन विवाह और अंत्येष्टि. इस तरह से 16 संस्कार है. और ईच संस्कार हैड लॉट्स ऑफ दान एंड दक्षिणा. बच्चा पैदा हुआ, तुरंत आ जाएगा प्रेस्ट दान दक्षिणा देने के लिए. नामकरण होगा उसका. अगर आपने अच्छा दान दक्षिणा दिया तो अच्छा लेटर मिलेगा आपको, एस मिलेगा, ए मिलेगा, बी मिलेगा, बढ़िया शब्द मिलेगा. और अगर आपने दान दक्षिणा नहीं देगा, बोलेगा जेड से नाम रखो इसका, जेबरा रखना पड़ेगा, जेलेंस्की रखना पड़ेगा, जॉम्बी रखना पड़ेगा. इस तरह से नामकरण की भी काफी बड़ी संभावनाएं उभर करके सामने. हाँ, तो ऐसा तो अच्छा लीटर है आदर्श. क्या समस्या है तुमको? मेरे नाम से क्या समस्या तुमको? तुम्हारा भी तो अच्छा है, ये है. तुरंत एकदम पर्सनल हमला कर देता है ये लड़का. आदर्श कुमार स्वभाव से ये पर्सनल हमला करने वाला बच्चा है. तो 16 संस्कार हो. तो गर्भधन पुंसवम सीमंतोनयन जात कर्म नाम कर्म अन्नप्राशन चौल व कर्णवेदा उपनयन विद्यारंभ वेदारंभ केशांत सांबर्तन विवाह अंत्येष्टि. अच्छा देखा, लास्ट में मैंने बोला अंत्येष्टि, उसके पहले मैंने बोला विवाह. तो विवाह के बाद केवल एक ही चीज बचता है, वो है अंत्येष्टि. तुम लोग को बोलते हैं सीखने के लिए, तो सीखता तो है नहीं तुम लोग. तो आफ्टर मैरिज यू हैव ओनली वन थिंग लेफ्ट एंड दैट इज अंत्येष्टि. तो 16 संस्कार. इसमें से एक होता है उपनयन.
उपनयन. So उपनयन it is there in the Satpat Brahman. सतपथ ब्राह्मण में उपनयन का डिस्क्रिप्शन है. सतपथ ब्राह्मण में उपनयन का डिस्क्रिप्शन है. सतपथ ब्राह्मण में देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ उपनयन. डिस्क्रिप्शन ऑफ उपनयन. उपनयन सतपथ ब्राह्मण. ब्राह्मण क्षत्रिय क्षत्रिय वैश्य only Brahman, Kshatriya and Vaishya had a right to उपनयन. Right to उपनयन. Shudra was not entitled to have the उपनयन. Brahman wear the cotton thread. क्षत्रिय बो स्ट्रिंग धनुष का धागा पहनता है वो. और वैश्य इज ऊल. उपनयन समझते ना, जनेऊ बोलते हैं नॉर्दर्न इंडिया में. नहीं याद मत करो विशाल, नहीं तो लिखवा नहीं देते तुमको हम. ठीक है, याद नहीं करना है. जो मैं बता रहा हूं आप केवल वो याद करिए. जो बोल रहा हूं वो याद करिए, जो नहीं बोल रहा हूं वो मत करिए. सो कॉटन थ्रेड, बो स्ट्रिंग, उल. और जो उपनयन, जो ब्राह्मण उपनयन नहीं करेगा, जो क्षत्रिय नहीं करेगा, वैश्य नहीं करेगा, वो शूद्र बन जाएगा. सो women and Shudra was not entitled for उपनयन. For उपनयन. So women and Shudra was not entitled for उपनयन. Okay. So women and Shudra. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. एक सर्टेन एज के बाद आप शूद्र की कैटेगरी में आ जाएंगे. शूद्र की कैटेगरी में आ जाएंगे. सतपथ ब्राह्मण. Okay. 10th. Viva. There are 8 type of marriage. 8 type of marriage. ब्रह्म विवाह,
दैव विवाह, अर्श, प्रजापत्य, गंधर्व, असुर, राक्षस, passage. There are 8 types of marriage. ब्रह्म, दैव, अर्श, प्रजापति, गंधर्व, असुर, राक्षस एंड 85। कौन करेगा राकेश? ये सब ब्राह्मण्स का डोमिनेंस है। सो ब्रह्म, दैव, अर्श, प्रजापति। ब्रह्म होता था मैरिज विथ प्रॉपर डॉरी, पेयर ऑफ बुल, एंड पेयर ऑफ काउ। बुल और काउ, एक जोड़ी गाय और एक जोड़ी बैल दीजिए, प्रॉपर डॉरी, ब्रह्म मैरिज। राइट, मतलब ग्रूम साइड देगा ब्राइड साइड को, ये डॉरी किसको देगा? ब्राइड। डॉरी जो है ना, इसलिए स्टार्ट किया गया था कि ये जो ब्राइड ग्रूम साइड ने दिया है, सॉरी ब्राइड साइड ने दिया है ग्रूम साइड को, उल्टा हो गया। ब्राइड साइड जो है, लड़की वाला जो है वो लड़के को देगा, और लड़के की सिस्टर की शादी भी उसी डॉरी से हो जाएगी, इसके सिस्टर की भी शादी उसी डॉरी से हो जाएगी। इस तरह से एक गाय बैल का जोड़ा जो है कई शादियां करवा देगा। जब एक शादी टूटेगा ना तो डॉरी वापस करना पड़ेगा, तो कई शादियां तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि वही गाय चाहिए, काली गाय जो दिए थे, हमको काली गाय वापस चाहिए। ठीक है ना? तो वैसे हिसाब से ये जो डॉरी था, इससे मैरिज एकदम अनब्रेकेबल हो गई। ठीक है ना बच्चे? आर्यन पटेल सब लिखना है, ये भी लिखना है, हम चोरी कर रहा है। राइट, सो ब्राइड साइड टू ग्रूम साइड, ये हो गया ब्रह्म मैरिज। ठीक है, अब एक्सेप्शनल केस में तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जब मर गई गाय तो फिर कोई बात ही नहीं है, अदरवाइज ये बात। दैव मैरिज होता था मैरिज विद द प्रिस्ट, विथ प्रिस्ट। अर्श मैरिज हुआ। अर्श मैरिज क्या होता है पता? अर्श मैरिज होता है रिवर्स डॉरी, डॉरी रिवर्स।
ग्रूम साइड देगा ब्राइड साइड को। एक जोड़ी गाय, एक जोड़ी बैल। सो डोरी, रिवर्स डोरी, ग्रूम साइड देगा ब्राइड साइड को। प्रजापति मैरिज होता था नो गिव नो टेक, नो गिव नो टेक। बिना किसी लेन देन के साथ ये है, नो गिव नो टेक, प्रजापति मैरिज। डोरी, रिवर्स डोरी। एक में देता है डोरी, लड़का वाला लड़की वाले को, सॉरी, लड़की वाला लड़का वाले को डोरी देता है ना आजकल, तो उसमें गाय और बैल देते थे। दैव होता था मैरिज विद द प्रिस्ट, अगर आपने किसी ब्राह्मण से शादी किया, मतलब देवता से शादी किया आप, ठीक है। एंड देन अर्श होता था रिवर्स डोरी, मतलब लड़का वाला जो है वो लड़की वाले को देगा, ग्रूम मतलब लड़का वाला होता है, ठीक है कुलदीप। और प्रजापति होता है नो गिव नो टेक। गंधर्व, लव मैरिज। लव मैरिज। असुर, अनमैच्ड मैरिज। मतलब लड़का काफी उम्र का है, लड़की काफी छोटी है। राक्षस, मैरिज बाय कैप्चर। कैप्चर, राक्षस, मैरिज बाय कैप्चर। पैसाच्य, पैसाच्य का मतलब होता है धोखे से शादी करना। जैसे फेसबुक डीपी देख करके शादी करना, पैसाच्य मैरिज हो जाएगा। व्हाट्सएप डीपी देख करके शादी करना, फोटो किसी और का, शादी किसी और से। डिसीव्ड मैरिज, मैरिज बाय ट्रिचरी। डिसिप्ड, डिसिप्ड मैरिज। धोखे से शादी करना। मेच्योरिटी बाय डिसिप्ट। विवाह, 8 टाइप्स ऑफ मैरिज। ये चारों अप्रूव्ड मैरिज है और ये चारों अनअप्रूव्ड मैरिज। अप्रूव्ड, नॉट अप्रूव्ड।
कृष्णा, ये प्रीलिम्स में ये सब टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैरिज बाय कैप्चर, जैसे सुनते नहीं बिहार में बीपीएससी टीचर को कैप्चर करके शादी कर लिया। मैरिज बाय कैप्चर। So 8 types of marriage. इकोनॉमिक फैक्टर, लेटर वैदिक पीरियड में इकोनॉमी कैसा था देखिए, मिक्स्ड इकोनॉमी, अगेन देयर विल बी अ मिक्स्ड इकोनॉमी। एग्रीकल्चर प्लस पेस्टोरल, पेस्टोरल, एग्रीकल्चर प्लस पेस्टोरल। एग्रीकल्चर, agriculture was dominant economy, dominant economy. Agriculture was dominant economy. We see the variety of crops, variety of crops. Rice means brihi. Rice means brihi. This is first time you can see this crop. Right? So, पहले राइस नहीं दिखते थे, वेराइटी ऑफ क्रॉप। इन यजुर्वेदा there are description of wild seeds. In Yajurveda there are description of wild seeds, pulses, rice, etc. आप लोग तो उस समय पैदा हुए जबकि मशीन काफी डोमिनेट हो गया, बट अपने गांव में 25-30 साल पहले वो खंबा गाड़ देते थे और 25-30 बैल लगा देते थे। 15-20 तो मैंने भी देखा है, मगर यजुर्वेद में बोलता है कि 40-45 बैल एक साथ लगाते थे और वो चक्कर लगाते थे चारों ओर, और तब जाकर के तब जाकर के वो फसल तैयार होता था। रौंद डालते थे उसको, फसल को। तो ये आप लोगों को पता है ये चीज। तो ये डिस्क्रिप्शन यजुर्वेद में है कि फसल की तैयारी की जाती थी, करीब 40-45 बैल लगाए जाते थे। आप लोग कितना जल्दी भूल गए, देखिए हजारों साल पहले क्या होता होगा। कुछ डिस्क्रिप्शन बहुत लंबे समय तक वही चीज कंटिन्यू रहा। हाल के दिनों में बहुत सारी चीजें बदल गई, बड़ी तेजी से टेक्निकल इनपुट हुआ।
कोल्हू का बैल नहीं है बोतल। ठीक है ना। सो ऑयल सीड्स। Agriculture became very complex. Pastoral was continued. Cow remained very important for the economy. Cow remained very important for the economy. Very important for the economy. Remained very important for the economy. There was a metal, iron came into existence. So iron was not known to the Aryans. आर्यंस को पहली बार आयरन का पता चला, राइट। सो मेटल, आयरन, इसको बोलते थे कृष्णयस। कृष्णयस, मेटल। काफी इंपॉर्टेंट हो गया। आयरन वॉज यूज्ड फॉर वॉर वेपन्स। वॉर वेपन्स, तलवार बनाए जाने लगे, अब तो महाभारत भी हो जाएगा फिर तो। वॉर, used for war weapons. So metal, iron, कृष्णयस, all these things. Trade was also there on the basis of barter. Trade on the basis of barter. Barter trade. Gift exchanges. The barter system was there. Tax collection became very important. Tax collection became very important. There are two taxes, bhag and bali. Bhag and bali.
Bhag is king's share of produce. King's share of produce. It was 1/6. Bhag is king's share of produce. It was 1/6. And Bali is voluntary offering. Fruits. Vegetable. फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क डेली किंग को पहुंचाइए। वॉलंटरी, स्वेच्छा से आप ये टैक्स देते रहते हैं। सो टैक्स कलेक्शन बिकेम वेरी इजी। इज इट ओके ऑल ऑफ यू? ठीक लग रहा है बच्चे? सिमरन, करो मदर इंडिया मूवी को, पहले तुम बताओ कि ठीक ये अपने लिखा या नहीं लिखा। श्रुति, शिवेंद्र, विशाल, वेरी गुड। सब बच्चे आराम से लिख रहे हैं कि कोई बच्चा बैठ करके इंतजार तो नहीं कर रहा है कि कैसे लिखें? ओके, भाग एंड बली। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, देखो पहले राजा जो है ऋग्वेद पीरियड में, ऋग्वेदिक पीरियड में किंग वॉज रूलिंग ओवर पीपल। किंग वॉज रूलिंग ओवर पीपल। जन, जन, जन मतलब ट्राइब, लोग। ऋग्वेदिक पीरियड में किंग वॉज रूलिंग ओवर पीपल। एंड हियर लेटर वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड इज अ टेरिटोरियल मोनार्की। टेरिटोरियल मोनार्की। King now started ruling over territory. Territorial monarchy. अच्छा ठीक है, तुम अगले चैप्टर से लिखना, पहले यहां पर जो इट वॉज बिगिनिंग ऑफ टेरिटोरियल मोनार्की, मतलब राजा अब क्षेत्र पर शासन करने लगा। जनपद, जनपद। सो जन बदल गया किसमें? जनपद में। लेटर वैदिक पीरियड में जन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू जनपद। जन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू जनपद। So two earliest Janpad
to earliest जनपद. Bharat plus Puru became Kuru. Bharat plus Puru became Kuru. दो ट्राइब ने मिलकर के कुरु जनपद बनाया. कुरु जनपद. और इससे तो पांडव और कौरव थे. पांडव और कौरव, दे वर फ्रॉम द कुरु जनपद. पांडवा एंड कौरवाज. कुरु जनपद. भारत प्लस पुरु इज कुरु. सो दो पावरफुल ट्राइब ने मिलकर के क्रिएटेड वन न्यू जनपद, और उसी से पांडव और कौरव. यादु प्लस तुर्वशा, इन लोगों ने मिलकर के पांचाल बनाया. पांचाल. द्रौपदी. The two earliest Janpad was Kuru and Panchal. Earliest Janpad. To political organization. Territorial monarchy. King. There were officers to support the king, or there were ministers to support the king. There were ministers to support the king, and they were known as Ratnin. Ratnin. So there were Ratnin. Yes, Kuru and Panchal are same as that of the Mahabharata. अभी तो कौरव पांडव आया, मिस्टर विशाल. मिस्टर विशाल.
Kaurava and Pandav. Ratnin means ministers. According to Shatpat Brahman, there were 12 Ratnin. Bhagdug was the tax collector. Tax collector. सब इस रियल है, सब रियल है, हम जा So Bhagdu, tax collector. इंसिडेंट हुआ है तभी रिकॉर्डेड हिस्ट्री में है. इंसिडेंट हुआ है तभी रिकॉर्डेड हिस्ट्री में है. Tax collector is Bhagdug. Satpat Brahman. So king, this is the economic system, political system. Regarding marriage, there was Anulom and Pratilom marriage. Anulom and Pratilom marriage. इफ बॉय जो है वो हायर बर्न का है एंड गर्ल इज ऑफ लोअर बर्न, तो जो बच्चा होगा इन बिटवीन होगा, हायर और लोअर बर्न का. जैसे बॉय ब्राह्मण है और गर्ल शूद्र है, तो इस दोनों के बीच का जो है बच्चा वैश्य होगा या क्षत्रिय होगा. और अगर उल्टा है, बॉय शूद्र है और गर्ल ब्राह्मण है मान लो, तो जो बच्चा होगा वो बॉय से भी नीचे जाएगा, उसको चांडाल बोलते हैं. चांडाल. सो प्रतिलोम मैरिज इसको बोला जाता है, इसको बोलते हैं प्रतिलोम और इसको बोलते हैं अनुलोम. आया समझ में बच्चे? ये हो गया प्रतिलोम और हो गया अनुलोम.
Child will not be Shudra, less than Shudra. और बॉय ब्राह्मण है तो थोड़ा बच्चे का अपग्रेडेशन हो जाएगा, इसको अनुलोम और प्रतिलोम बोलते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये सब अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर था, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ ऋग वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। तो चांडाल हो। रिलीजन, religion of the religion of Rig Vedic or religion of Vedic period, Vedic period is henotheism. What is henotheism? God is one, present in many form. God is one, present in many form. ईश्वर एक है बट कई रूपों में है। God is one, but present in many form. देखो इसको इतना समझाए, अरे बॉय ब्राह्मण है, गर्ल शूद्र है, तो बीच में होगा उसका बच्चा, कहीं क्षत्रिय और वैश्य में होगा। ठीक है ना, मतलब बॉय से नीचे, गर्ल से ऊपर। ठीक है, और बॉय शूद्र और गर्ल ब्राह्मण है तो बॉय से भी नीचे चला जाएगा, वो चंडाल हो जाएगा। अब आया शैलेंद्री कश्यप आपको समझ में? God is one but present in many form. राइट, सो चांडाल हो गया। So God is one, present in many form. In Rig Veda,
There are 33 gods. 33 gods. 33 types of God. जिसको आप लोग 33 करोड़ बना देते हैं। आपको जीरो ऐड करने की आदत है? 33 types of God. Only 33, बट आपको तो 33 करोड़ आदमी भी नहीं होगा पूरा धरती पर। So present in many forms. ऋग्वेद में there are 33 types of the God. But God is one, present in many forms. They worship anthropomorphic representation of nature. Anthropomorphic representation of nature. Anthropomorphic representation of nature. नेचर को ह्यूमन के फॉर्म में प्रेजेंट किया, राइट? अग्नि, इंद्र, वरुण, सो नेचर को ह्यूमन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। Anthropomorphic representation of nature. राइट? अग्नि को ह्यूमन की तरह प्रेजेंट किया, इंद्र को ह्यूमन की तरह प्रेजेंट किया, इसको एंथ्रोपोमॉर्फिक बोला जाता है। समझ में आया बच्चे ये बात? सो एंथ्रोपोमॉर्फिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचर। God is one, present in many forms. लेटर वैदिक पीरियड में केवल एक चेंज आया, सारे गॉड वही हैं, बट हियर वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल्स। यज्ञ बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट इन लेटर वैदिक पीरियड। यज्ञ बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ फॉर द ब्राह्मण, फॉर द क्षत्रिय, और क्षत्रिय के लिए ये सारे यज्ञ ब्राह्मणों ने तैयार किए। पूरे साल लगे रहिए आप। और कॉमन मैन 16 संस्कार, 5 यज्ञ डेली। और फॉर कॉमन मैन 16 संस्कार एंड 5 यज्ञ डेली। ठीक है? एकदम सुबह से लेकर के शाम तक 5 बार यज्ञ करिए। 5 यज्ञ, 5 नमाज, इस सब में बड़ा क्लोज सिमिलरिटी है। एनी टाइम ब्राह्मण विल कम। दोपहर वाला यज्ञ किया, नहीं किया, नरक में जाएगा तुम।
right? So yajna became more important. So 5 yajna, 16 sanskar and 5 yajna daily. हाँ, यजना ही लिखा जाता उसको, केतन यजना, 5 यजना डेली। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्सिटीज केम इन द लेटर वैदिक पीरियड बिकॉज ऑफ द रिचुअल। एंथ्रोपोमॉर्फिक का मतलब समझे, ह्यूमन, लाइक ह्यूमन। इंद्र इज द हाइएस्ट गॉड ऑफ द आर्यंस। इंद्र, हाइएस्ट गॉड। टू 50 times mentioned in the Rig Veda. 250 times mentioned in the Rig Veda. Indra is 250 times mentioned in the Rig Veda. Right? So 250 times mentioned in the Rig Veda. Indra is war god. War god. Indra is known as Purandhar. Breaker of forts. Breaker of forts. किलों को तोड़ देता है। अगर आज इंद्र होते तो लाल किला तोड़ दिए होते। इंद्र इज नोन एज पुरंदर, किलों को तोड़ने वाला। ब्रेकर ऑफ द फोर्ट्स। इंद्र इज सोमपे। ड्रिंकर ऑफ सोमा। सोमरस पीने वाला है। सोमा इज इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक, और वो ड्रिंक करके नॉन आर्यंस का डिस्ट्रक्शन करता है। वो ड्रिंकिंग और डिस्ट्रक्शन का बहुत पुराना रिलेशन है। ड्रिंकिंग और डिस्ट्रक्शन का बहुत पुराना रिलेशन है। सोमपेय बोलते हैं इंद्र को। इंद्र के पास ऐरावत है, एलिफेंट। इंद्र के पास कामधेनु है, काऊ। ऐरावत, एलिफेंट, कामधेनु, काऊ, सारा चीज इंद्र के पास।
इंद्र। इंद्र की वाइफ है इंद्राणी। सच। एंथ्रोपोमॉर्फिक तो श्रुति अभी तक है ना। देखते हैं आप, गॉड को ह्यूमन के फॉर्म में वर्शिप करते हैं ना, इसी को एंथ्रोपोमॉर्फिक बोलते हैं। सो लेटर वैदिक पीरियड ऑल्सो एंड टिल डेट इट इज एंथ्रोपोमॉर्फिक। सो गॉडेस ऑफ एनर्जी इंद्रानी, साची, इंद्र की वाइफ है। अग्नि सेकेंड हाईएस्ट गॉड, 200 times mentioned in the Rig Veda. $200 times mentioned in the Rig Veda. Indra is intermediate god between god and human. God between god and human. ईश्वर और आदमी के बीच में अग्नि है। इंटरमीडिएट गॉड बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन। इफ यू वांट टू सेंड एनीथिंग टू गॉड, पुट इन द अग्नि। अग्नि में हवन करते हैं ना, ईश्वर तक चला जाता है। फास्टेस्ट कुरियर। एनीथिंग यू वांट टू सेंड डायरेक्टली टू गॉड। इफ यू वांट योरसेल्फ आल्सो, अगर आप खुद जाना चाहते हैं तो भी अग्नि आपको भेज देगा। $200 times the word mentioned in the Rig Veda. डायरेक्ट फास्टेस्ट कुरियर है बिल्कुल। So intermediate god between god and human. Agni is known as Pathikrit. Agni is known as Pathikrit. Agni is known as Atithi, guest. पथिकृत का मतलब होता है मेकर ऑफ द वेज। रास्तों का निर्माण करने वाला है, मेकर ऑफ द पथिकृत। अतिथि इज गेस्ट। हर शाम आती है, चूल्हा जला के जाती है। अतिथि गेस्ट उसी को कहते हैं कि आने के बाद तुरंत चला जाए, और यहां तो गेस्ट जम जाते हैं। सो अतिथि इज गेस्ट, पथिकृत। हर शाम आती है, चूल्हा जला के जाती है अग्नि।
ठीक है बच्चे। तो गेस्ट होता है जो तुरंत चला जाए, अतिथि, अधिकृत, मेकर ऑफ द वेज। एग्जाम्पल है ना, इन महाभारत व्हेन Duryodhan was searching for Pandavas and Pandava brother was hiding in the house of lake. तो उसने आग लगा दिया था जंगल में। तो दिस इज हाउ द path can be found only by fire. सुपथिकृत अग्नि। वरुण, वरुण is god of ethics. Varun is god of ethics and morality. God of ethics and morality. वरुण। आप समझते हैं एक बात, बोलते हैं कि संसार का यही रित है। रित मतलब नियम, रित, ऋतु। व्हाट इज ऋतु? नियम। सो वरुण इज प्रिजर्वर ऑफ ऋतु। ऋतु मतलब लॉ। इज प्रिजर्वर ऑफ ऋतु। इसको वैदिक संस्कृत में ऐसे लिखते हैं, RT.A, ये हो गया रित। सो वरुण इज प्रिजर्वर ऑफ रित। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको कोई देख नहीं रहा है, आप अकेले हैं, तो बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। वहां पर वरुण के गंधर्व और अप्सरा हैं जो आपके एक एक हरकतों का रिकॉर्ड करते हैं, और वो वीडियो रिकॉर्डिंग जब आप मरेंगे तो उनको आपको दिखाया जाएगा, और उसके बाद आपके दो दरवाजे होंगे, एक स्वर्ग होगा, एक नरक होगा। तो आप अपनी हरकतों से पहले ही समझ जाते होंगे कि कहां जाना है। वन 20 टाइम्स इन द ऋग्वेद, राइट। सो ऋतु है। तो वरुण हैड ए स्पाई, गंधर्व एंड अप्सरा। गंधर्व एंड अप्सरा, ये दोनों वरुण को चोक करते हैं। वरुण का स्पाई, ये आपकी हर एक हरकतों पर नजर रखते हैं। वरुण इज गॉड ऑफ सीजन। जाड़ा गर्मी बरसात कौन करवाता है? सो ऋतु और ऋतु, ऋतु मतलब सीजन और ऋतु मतलब नियम। बोथ आर कमांडेड बाय वरुण। पेपर 4 जीएस का गॉड कितना है? कौन है? वरुण। पेपर 4 जीएस।
गंधर्व और अप्सरा. So preserver of ritva, law, ritu, god of season. सीजन चेंज करता है वरुण. दैट्स इट. उषा. उषा. उषा इज गॉडेस ऑफ डॉन. गॉडेस ऑफ डॉन. उजाले की देवी है उषा. गॉडेस ऑफ डॉन. उजाले की. गॉडेस ऑफ डॉन. सो इंद्र वर्सेज उषा. अगर आप जान लीजिए कि बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है, इसका मतलब इंद्र डिफीटेड उषा. बहुत ज्यादा लाइट आता है, सनलाइट, उषा डिफीटेड इंद्र. इंद्र बादल लगाना चाहता है, बरसात होगा, उषा उजाला लाना चाहती. डॉन मतलब उजाला. त्रिमूर्ति बाद में आएगा, अभी नहीं आया है. बट ब्रह्मा गॉड आ गया है. तो गॉडेस ऑफ डॉन. गॉडेस ऑफ डॉन. इंद्र वर्सेज उषा. So this is the Vedic period. Now come to the post Vedic period. मैंने कल कहा था आपको NCERT. You must go with the NCERT. Post Vedic period means after 600 BC. After 600 BC. Post Vedic period, that is after 600 BC. Usha was pronounced 25 times in the Rig Veda. 25 times. So post Vedic period, we have three important discussion in the post Vedic period. First is age of Mahajanpad. Second is age of second urbanization. Second urbanization. And third is age of Buddha and Jaina. Age of Buddha and Jaina.
So age of second urbanization, age of Mahajanpad, and age of Buddha and Jaina. Age of Buddha and Jaina. Age of Mahajanpad, age of second urbanization, and age of Buddha and Jaina. जन से जनपद एंड जनपद से महाजनपद. There were 16 Mahajanpad. लिख रहे हो दीप्तेश. In yesterday class you have said about a rishi who was born from Sudra parents. You had told it when talking about Rig Vedic society. क्या है? कण्व ऋषि. So Jan to Janpad and Janpad to Mahajanpad. There were 16 Mahajanpad in the post Vedic period. मतलब बड़ा टेरिटरी. 16 Mahajanpad in the post Vedic period. And secondly, second urbanization was in Gangetic Valley. Second urbanization is in Gangetic Valley. This is the area of second urbanization. This is the area of second urbanization. First urbanization, Indus Valley. This is the area of the first urbanization, Indus Valley. And this is the area of second urbanization, Gangetic Valley. In 600 BC. और ये तो आप जानते हैं इंडस वैली का अर्बनाइजेशन 3000 BC it had started. So 600 BC. So in this phase we have the second urbanization. First. What reason? What was the reason behind the second urbanization? Very simple reason. First is alluvial soil of Gangetic Valley. Alluvial soil. Of Gangetic Valley.
alluvial soil of Gangetic Valley. Alluvial soil of Gangetic Valley, which was very fertile soil, and it helped in production of surplus. Production of surplus. Fertile soil, and it helped in production of surplus. Second, पैडी कल्टीवेशन. आप जानते हैं ना, पैडी कल्टीवेशन. इस एरिया में पैडी बहुत होता था. यहां पर व्हीट, यहां पर पैडी. पैडी कल्टीवेशन. Paddy is more productive than wheat. More productive than wheat. Paddy is more productive than wheat. Third is transplantation of crop. पैडी. आप जानते हैं ना कि एक तो तरीका है कि धान को छींट दिया खेत में, और दूसरा होता था प्लांट ग्राफ्ट करते हैं, और इसमें 10 टाइम्स प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है. तो बिकॉज ऑफ ट्रांसप्लांटेशन ऑफ क्रॉप, द प्रोडक्टिविटी increased 10 times. Transplantation of crop, the productivity increased 10 times. 10 गुना ज्यादा बढ़ गया था. Its productivity had increased 10 times. सरप्लस जितना ज्यादा होगा उतना फास्ट अर्बनाइजेशन. Surplus जितना ज्यादा उतना फास्ट अर्बनाइजेशन. So here we have the big cities. Here we have the big cities. In these areas we have the big cities. पूरे बंगाल से लेकर के हरियाणा तक गंगेटिक वैली. Why there is a big second urbanization in the Gangetic Valley in 600 BC? Fourth, introduction of coins. Punch marked coins. Punch marked coins. Introduction of punch marked coins. First coin circulated in 500 BC. It was a silver coin with punching.
It was a silver coin with punching. So obviously it increased the trade and commerce. It increased the trade and commerce. It increased the trade and commerce. Punch marked coins. It increased the trade and commerce. Introduction of coins. It increased the trade and commerce. फिफ्थ, एकल्चरेशन मतलब कई सारे कल्चर एक साथ. प्रोसेस ऑफ एकल्चरेशन. देखो बच्चे, इसको ध्यान से देखना सारे बच्चे. यहां पर न्यूलिथिक कम्युनिटी था, फिर हड़प्पा डिक्लाइन हुआ तो माइग्रेटेड टू दिस एरिया, देन आर्यंस आल्सो माइग्रेटेड टू दिस एरिया. सो मेनी कल्चर got fused at one place, right? It fused at one place. So culture means technological fusion. So process of acculturation means it was acculturation between Harappans, Aryans and Neolithic community, Neolithic people. This is called process of acculturation. Neolithic people. पंचिंग मतलब उस पर पंचिंग सिंबल होता था. So fifth is process of acculturation. और sixth है the ideology of Buddha and Jaina. Ideology of Buddhism. What is ideology? Social mobility. जितना ज्यादा social mobility उतना ज्यादा economic mobility. ठीक है. Non-violence. Non-violence helped trade and commerce. So these are the factors that led to the second urbanization. ये पॉइंट समझ में आया बच्चे आपको कि ट्रेड एंड कॉमर्स, the Buddhism, ideology of Buddhism, it preached social mobility, it preached trade and commerce. Non-violence helped in trade and commerce. So these six factors, ये क्या है? Process of acculturation between Harappans, Aryans and Neolithic people. They fused together to make the second urbanization. तो सारे बच्चे इस क्वेश्चन को लिखेंगे घर में. Causes of the rise of second urbanization. Causes of the rise of second urbanization. All of you will write at home. पारस, परमेश्वर, छाया, आस्था, शब्द सुन लो ध्यान से. खुशबू, दीक्षा. ठीक है, सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा और इसको लिखना है घर में. राइटिंग प्रैक्टिस किया करिए. लिखने की आप लोगों को आदत नहीं है ना, देखते रहते हैं स्क्रीन.
चुपचाप। ठीक है अर्चित? और यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे, बुद्धा और जैनब पढ़ेंगे, लाइफ का मजा आ जाएगा बिल्कुल। लाइफ के जितने प्रॉब्लम है सब सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो सारे क्वेरीज आप पढ़ करके फ्रेम करके रखिएगा, कल सॉल्व करेंगे इसको। एक बार पूरा गो थ्रू होइएगा, पूरा वीडियो। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर द डे।